Hello student, welcome to the next session of the class 6th science subject. In the previous session we have seen the various component of the food which are very essential for our body and the various functions of these components of food. Sometimes we refer it as a nutrient. Okay, students, today's weather is so cloudy and that's why the light is so less. Cloudy weather होने की वजह से काफ़ी light कम है, so that's why I have started the lights and therefore you will feel some shining board, but don't worry, I'll write here. Okay, so student, in the previous sessions we have seen that the carbohydrate, fats, proteins, vitamins and minerals are the very essential nutrient or the components of food which are present in the food, and that we take, these nutrients we take from the food. Now the function of each, just a recap of the previous session. Carbohydrates provide energy, fat also provide energy, protein for muscle building, vitamins for functioning the different organs, and minerals for formation of bones, blood cells, etc. Now these five are the some important components of food. Now let's move to the next one. So this is roughage and dietary fibers. We have seen the first five. Now sixth one is roughage and dietary fiber. The spelling is roughage. Rough, R-O-U-G-H-A-G-E, roughage, and dietary fibers. See, dietary, D-I-E-T-A-R-Y, dietary fibers, F-I-B-R-E-S. So roughage and dietary fibers, as the name is there, dietary, it means it is related with the digestive system. Students, see, whatever we eat, some part of the plant, or you can say the food, which is remain undigested, and they does not provide any nutrient to the body, but they help in maintaining the digestive system. Means what? सिंपल है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है फूड आइटम्स में या फिर फूड की जिसमें जो डायरेक्टली डाइजेस्ट ना होकर उससे हमें कोई न्यूट्रिएंट नहीं मिलते, यानी जो 1 2 3 4 5 6 जो हमने देखे थे, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स ये जो देखे थे हमने 5, ये न्यूट्रिएंट हमें उससे नहीं मिलता, बट ये कैसे रहता है? अनडाइजेस्टेड, बट दिस हेल्प इन डाइजेशन ऑफ अदर फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, इसीलिए इसको डाइटरी फाइबर्स कहा जाता है. डाइटरी, जो डाइजेशन में हेल्प करे. ओके, अगर ये डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर कम हो जाते हैं, अगर डाइटरी फाइबर्स अगर आपने ज़्यादा नहीं लिए तो आपका फूड डाइजेस्ट नहीं होगा और फिर एक नई कंडीशन हो जाती है जिसे हम कहते हैं कॉन्स्टिपेशन. यस, so this is very much important. And now this roughage and dietary fibers are of two types. The first one is soluble, second one is insoluble. Soluble, insoluble. Soluble का मीनिंग क्या होता है? जैसे देखो, if you have taken a glass of water and then what you will take, a full spoon of say salt, okay, water and salt, then mix it and stir it for some time. Okay, when you will stir it, after some time the whole salt disappears. Okay, so why? Because the salt is soluble in the water. Now in place of salt, if you take what? पेबल्स, छोटे छोटे, हमने इतने छोटे छोटे कंकड़ ले लिए है ना, पेबल्स छोटे साइज के, एंड नाउ मिक्स इट एंड स्टिर इट. इफ यू स्टिर इट होल डे, 1 day, 2 day, हाउ मेनी डेज आई डोंट नो, बट इफ यू स्टिर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, देन ऑल्सो इट विल नॉट soluble in the water. So soluble का मतलब वो होता है जब हम पानी में कोई चीज़ मिक्स करते हैं और वो चीज़
पानी में पूरी तरीके से मिल जाती है तो उसे हम कहते हैं सॉल्यूबल. ओके, सो सम dietary fibers, roughage and dietary fibers are there which are soluble in water, means they mixes with the water. Say apple, strawberry and rice are the example of soluble roughage. Okay, roughage and dietary fibers का जो बहुत अच्छा एक example है वो कौन सा है? Apple, soluble in water. Okay, apple means apple पूरा soluble नहीं होगा, but apple से जो हमें roughage मिलता है, एप्पल के अंदर से जो हमें रफेज मिलेगा वो रफेज वाटर में सॉल्यूबल है. नहीं तो आप लोग सोचोगे सर एप्पल कैसा वाटर में सॉल्यूबल है, राइस कैसा सॉल्यूबल है, तो राइस, एप्पल, स्ट्रॉबेरी ये सॉल्यूबल नहीं है. हमें क्या देखना है, इसमें से जो रफेज निकलेगा, तो जो रफेज है वो रफेज वाटर में सॉल्यूबल है. क्लियर? सो द रफेज विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एप्पल, स्ट्रॉबेरी एंड राइस आर सॉल्यूबल इन water. That's why they are called soluble roughage. Okay, roughage obtained from apple, strawberry and rice. In the same way, the roughage which is obtained from carrot, cabbage, cauliflower, these roughage which is obtained from these three sources of food, these are not soluble. That's why they are called insoluble of water. Insoluble roughage. Okay, insoluble roughage. Now see, as I said, it is a dietary fiber. Dietary fibers का मतलब होता है डाइजेशन में हेल्प करने वाला. if it is taken in a adequate amount, adequate amount का मतलब होता है जितने अमाउंट की हमें ज़रूरत होती है उतने अमाउंट के अगर हमने उसे कंज्यूम किया, खाया, हमने अपने फूड में उसको इनटेक किया, तो क्या होगा, that will gives you a balanced digestion system, है ना, एक प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम आपको देगा. बट इफ यू ईट अ लेस प्रपोर्शन या फिर कम अगर आपने डाइटरी फाइबर्स खाए, आपके फूड में डाइटरी फाइबर्स अगर कम हैं, तो क्या होगा, यू विल सफर अ कंडीशन कॉल्ड एज कॉन्स्टिपेशन. कॉन्स्टिपेशन क्या होता है, आपने देखा होगा बेटा, कभी कभी अगर पेट खराब रहा तो क्या हो जाता है, हमें बार बार वॉशरूम जाना होता है. इज इट? यस. सो दैट इज कॉल्ड एज डिसेंट्री, है ना, बहुत ज़्यादा बार बार जाना पड़ता है, बार बार हमें वॉशरूम जाना पड़ता है. लेकिन अगर उसका अपोजिट अगर हम देखें, हम उसका अपोजिट देखें, यानी हमने आज भी खाना खाया फिर भी हम वॉशरूम नहीं गए, दूसरे दिन भी खाया लेकिन फिर वॉशरूम नहीं गए, एक दिन 2 दिन अगर आप वॉशरूम नहीं जाते तो आपका पेट एकदम से कैसा अजीब ही लगने लगता है ना, देन दैट इज नॉट good for your health. So that condition is called constipation. Constipation is the condition where the stool become hard. Stool का मतलब the waste material. Okay, the stool become hard and difficult to pass. This condition is called constipation. यानी जब हम अगर डाइटरी फाइबर्स कम खाएंगे तो उसके वजह से जो हमारा वेस्ट मटेरियल जो हम रोज बाहर थ्रो करते हैं ना, वो कैसा हो जाता है, हार्ड हो जाता है, इट इज़ डिफिकल्ट टू पास. सो दैट कंडीशन इज कॉल्ड कॉन्स्टिपेशन एंड दिस इज़ नॉट अ गुड कंडीशन. क्योंकि कई बार फिर क्या होता है, ऐसी कंडीशंस में फिर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब होने लगता है. फिर हमारा अगर प्रॉपर डाइजेशन नहीं होगा तो हमारे बॉडी को फिर न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे तो फिर हमारी बॉडी प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगी तो हम बीमार पड़ जाएंगे, है ना. इसीलिए हर चीज़ को एक प्रॉपर अमाउंट में लेना बहुत ज़रूरी है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक all the nutrient in a proper proportion. Okay, so now I think you understood the roughage and dietary fibers. It is also a very important component of food which is very much necessary for our digestion. Okay, so carbohydrate, fat, proteins, vitamins, minerals, roughage and dietary fibers. Now the next one is water. Okay, and this water is very very important. Though we did not take the water directly from the food, we take the water we drink the water directly, है ना, हम डायरेक्टली पानी पी लेते हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे बॉडी के लिए. लेकिन बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं, फूड आइटम्स है जिसमें वाटर का प्रोपोर्शन थोड़ा सा ज़्यादा होता है. Okay, so next one is
water. This is very important. In place of writing water, you can write its formula H2O. What I have written H2O, it is a molecular formula of water. Student, in the higher classes you need not to use the whole word or the whole name of any element like water. आप उसकी जगह उसका फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ H2O. हम फार्मूला वगैरह हायर क्लासेस क्लास 7 से आपका फार्मूला स्टार्ट होता है, बट मैं अभी से आपको आइडिया दे रहा हूँ. H2O, H का मतलब होता है हाइड्रोजन, O का मतलब होता है ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंबाइन करने पे ही वाटर का फॉर्मेशन होता है. ओके, तो इसीलिए उसका फॉर्मूला H2O है. तो अब जब भी हम वाटर जहाँ लिखने की बारी आएगी तो हम वहाँ क्या लिखेंगे? दैट इज वी विल यूज द फॉर्मूला ऑफ वाटर, दैट इज H2O. ओके, नाउ अब देखो वाटर वी डायरेक्टली ड्रिंक इट, है ना, डायरेक्टली हम ग्लास में लेके पी लेते हैं. और साथ में कई सारे ऐसे फूड आइटम्स है जिसमें से हमें वाटर मिलता है. क्या आप कुछ एग्जाम्पल्स बता सकते हैं? जस्ट टेल मी सम फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ the food items or the fruits which contains the water in an adequate amount. Very common one, जल्दी बताइए कौन सा है? आई एम वेटिंग. यस, समर सीजन में ज़्यादा हम खाते हैं, याद है? यस, इट इज़ वाटरमेलन, तरबूज. याद है ना वाटरमेलन? वाटरमेलन देखा है ना सबने? तो वाटरमेलन को जब भी आप खाते हैं आपने देखा होगा उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर होता है. तो जब भी क्या होता है, हम ये वाटरमेलन को खाएंगे तो क्या करेगा? हमारे बॉडी में वाटर का लेवल को मेंटेन कर देगा. स्टूडेंट्स, इन द फर्स्ट सेशन आई टोल्ड यू कि क्या है, सीजनल फ्रूट्स खाने चाहिए. ये मैंने आपको फर्स्ट सेशन में बोला था. ओके, इन द फर्स्ट सेशन आई टोल्ड यू दैट यू मस्ट ईट द सीजनल फ्रूट्स. सीजनल फ्रूट्स का मतलब ये होता है कि जिस सीजन में जो फ्रूट आया वो फ्रूट को आपने कंज्यूम करना ही चाहिए. क्यों? क्योंकि वो नेचर कैसा है, बैलेंस बना के रखता है. तो देखो आपने देखा वाटरमेलन स्पेशली, है ना, अभी तो कैसे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक बहुत सारी ऐसी फार्मिंग होती है तो कभी भी अवेलेबल है, बट एक्चुअल में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कब अवेलेबल होता है? वो समर में. इज इट? यस, समर में ही. क्यों? क्योंकि समर में हमें ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है. आवर बॉडी नीड्स more amount of water. So watermelon and other fruits, they help us to maintain the balance of water in our body. Now the question arises is why we need water. So you must know that 70% of our body is made up of water. Is it amazing? Yes, हमारी बॉडी जो है उसमें से 70% जो पोर्शन होता है यह बना होता है वाटर से. इस वजह से अगर वाटर का लेवल कम हो गया तो हमें एक कंडीशन फेस करनी होती है, एंड दैट इज कॉल्ड एज डिहाइड्रेशन, है ना. फर्स्ट सेशन में ये भी मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था कि व्हाट इज डिहाइड्रेशन. डिहाइड्रेशन का मतलब होता है व्हेनेवर द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी, एक्सेस लॉस ऑफ वाटर. आपने देखा होगा कब होता है? जैसे काफ़ी धूप है, आप काफ़ी काम कर रहे हैं तो फिर आपके बॉडी से बहुत सारा स्वेट बाहर आता है ना, स्वेट बाहर आता है, बहुत पसीना निकलता है. सो दिस स्वेट्स रिड्यूस द वाटर लेवल इन योर बॉडी, है ना. क्या रिड्यूस का मतलब? कम कर देता है. आपके बॉडी से पानी का लेवल कम हो जाता है, क्योंकि पानी किस फॉर्म में बाहर आ जाता है? दैट इज स्वेट. बहुत सारा पानी स्वेट के फॉर्म में, पसीने के फॉर्म में बाहर आ जाता है. अब जब पसीने के फॉर्म में बाहर आ गया तो उसके बाद हमारे बॉडी में वाटर का लेवल कम हो जाता है. अब हमें इसीलिए क्या होता है, समर में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, सो दैट इट कैन मेंटेन द वाटर लेवल इन आवर बॉडी. अब अगर आपने वाटर लेवल मेंटेन नहीं किया, ओके, यानी पानी आपने नहीं पिया, बस पानी आपके बॉडी से बाहर निकलते जा रहा है थ्रू स्वेट्स, है ना, निकलते जा रहा है, निकलते जा रहा है, निकलते जा रहा है, और फिर एक कंडीशन ऐसी आएगी कि आपके बॉडी में वाटर का लेवल काफ़ी कम हो जाएगा. और वाटर का लेवल कम हुआ तो क्या कहते हैं फिर उसको? डिहाइड्रेशन. एंड डिहाइड्रेशन इज़ नॉट अ गुड सिम्टम्स, और इट्स नॉट गुड फॉर आवर हेल्दी बॉडी. ओके, फर्स्ट वी विल सी व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द वाटर इन आवर बॉडी. पहले हमें ये देखना होगा ना कि ये वाटर तो हम बोल रहे हैं कि इतना इंपॉर्टेंट है, तो इसके फंक्शन क्या है? तो सबसे पहला फंक्शन है ट्रांसपोर्ट. ओके,
So this one, these are four main function of water. First one, transport of substances, means whatever nutrient absorbed by our body, that is transported to whole बॉडी और यू कैन से अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. जैसे देखो हमने कुछ खाया, डाइजेस्ट सिस्टम में गया, फिर डाइजेस्ट में से जूसेस उसमें मिक्स हुए, फिर जैसे ही किस में जाता है, इंटेस्टाइन में जाता है, फिर वहाँ से उसको एब्जॉर्ब किया. तो एब्जॉर्ब करने के बाद अब वहाँ से अब दूसरे पूरे बॉडी में भी तो ट्रांसफर करना है ना. तो ट्रांसफर करने का काम होता है वाटर का. व्हाट न्यूट्रिएंट और व्हाट सब्सटेंसेस इट ट्रांसफर? फूड, न्यूट्रिएंट in the form of starch and sugar. Okay, so that is transport of substances. That is the first function of the water. Second function of the water is to absorb nutrient, means nutrient को absorb करना. absorb nutrients, जितने भी nutrients हमने देखे, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स, रफेज, ये इन सब चीज़ों को absorb करना. ठीक है, फूड से absorb करना और absorb करने के बाद फिर उसको ट्रांसपोर्ट करना. डन, दो फंक्शन. थर्ड वन इज मेंटेन बॉडी टेम्परेचर. देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि अगर गर्मी में आप काम कर रहे हैं या गर्मी है तो हमारे बॉडी से बहुत सारा स्वेट बाहर निकलना शुरू होता है. तो ये स्वेट क्यों निकलता है? सो दैट आवर बॉडी टेम्परेचर शुड बी मेंटेन. बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, यानी बहुत ज़्यादा अगर गर्म है तो हमारी बॉडी डैमेज नहीं होनी चाहिए करके क्या होता है, स्वेट निकलता है, और स्वेट हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने की कोशिश करता है. ओके, सो इट मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर. देखो अगर स्वेट नहीं निकलेगा तो हमारी बॉडी अपने टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाएगी. दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट वन इज हेल्प इन डाइजेशन एंड एक्सक्रीशन. हेल्प इन डाइजेशन का मतलब ये है कि जो भी हमने खाया तो खाने के वक्त, अगर खाने के बाद फिर जब हम उसको डाइजेस्टिव सिस्टम में जब वो जाता है और डाइजेस्टिव सिस्टम से में जब वो डाइजेशन होना स्टार्ट होता है तो उसके लिए क्या ज़रूरत पड़ती है? वाटर की. अगर वाटर का लेवल कम रहा तो फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पाता. इसलिए वाटर का लेवल प्रॉपर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू हैव द वाटर लेवल. सो दीज फोर आर द मेन फंक्शन ऑफ वाटर. लेट्स रिपीट अगेन. फर्स्ट, transport of substances. It transport the various substances to our body or inside the body. Next one, it absorb the nutrient from the food. It absorb the nutrient. Next is maintain the body temperature. Water help in maintaining the body temperature. And the last one, it help in digestion and excretion. Okay, these four are the main function of the water. Student, as I said, the water is very essential and very important part of our body because 70% of our body made up of water. Now, if our body excrete, अब देखो किसी के दिमाग में ये तो है ना, एक्सक्रीट का मतलब क्या होता है? निकालना. डाइजेस्ट का मतलब तो आपको समझ आ जाता है कि हम कोई चीज़ डाइजेस्ट करते हैं, इसका मतलब पचाते हैं. एक्सक्रीट करने का मतलब ये होता है वो हमारे बॉडी से अगर हमारे बॉडी के लायक नहीं है, यानी उसमें से पूरे न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर चुके हैं, तो फिर जो बाकी चीज़ें रहती है जो हमारे बॉडी के लिए यूज़फुल नहीं है उसको हम क्या करते हैं? बॉडी से बाहर कर देते हैं बाय गोइंग टू द वॉशरूम, है ना. तो वो एक्सक्रीशन है. एक्सक्रीशन और कहाँ पर आता है? एक्सहेल करते हैं, वो भी एक्सक्रीशन का एक पार्ट है. क्योंकि देखो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी के लिए गुड नहीं है ना, ज़रूरत नहीं पड़ती, तो हम एक्सक्रीट कर देते हैं, उसको बाहर कर देते हैं. लेकिन एक्सक्रीशन मेन किस में आता है कि हम जो भी डाइजेस्ट किया फूड और डाइजेस्ट करने के बाद जब हम अपने बॉडी से उसको रिमूव कर देते हैं, सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सक्रीशन. अब मैंने कहा कि अगर हमारी बॉडी एक्सक्रीशन के थ्रू वाटर का लेवल काफ़ी कम हो गया है ना, आप वॉशरूम जा रहे बार बार और उससे भी एक्सक्रीट कर दे, बहुत सारा वाटर लेवल कम हो गया, फिर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, बहुत गर्मी है, बॉडी से बहुत ज़्यादा स्वेट निकल रहा है, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, तो क्या होगा? वाटर का लेवल एकदम कम हो जाएगा. तो फिर ऐसे कंडीशन को जब भी मैंने क्या कहा था? डिहाइड्रेशन. ओके, सो लेट्स क्लीन दिस वन. Okay, so dehydration. Dehydration is the condition when excess loss of water
from our body occurs. Okay, means excess loss of our water, excess loss of water from our body leads to condition called dehydration. जब भी हमारे बॉडी से एक्सेस अमाउंट में क्या होगा, लॉस ऑफ वाटर, और जब वाटर लॉस होता है जैसे इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट, सो it also, sorry, in the form of salt water, that is you can say sweat. Okay, so it also reduces the level of salt, यानी वो हमारे बॉडी से सॉल्ट का जो लेवल है उसको भी कम कर देता है. तो इसीलिए हमारे बॉडी में क्या होती है, वीकनेस आती है. आपने देखा होगा ना, एग्जॉस्टेड पीपल जो एकदम से थके हुए रहते हैं, एकदम से थकान से महसूस होती है, काफ़ी काम करने के बाद बहुत सारा पसीना निकला, बहुत सारा पसीना निकलने के बाद बॉडी डिहाइड्रेट हो गई, तो आप एकदम से ऐसे हो जाते हैं, वी सो मच टायर्ड. फिर हम क्या करते हैं, पानी पीते हैं. हम खाना नहीं खाते, हम क्या करते हैं, पानी पीते हैं, सो दैट इट कैन मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर एज वेल एज द लेवल ऑफ वाटर इन योर बॉडी. Okay, so excess loss of water, simple definition you can memorize, that is excess loss of water leads, excess loss of water from our body leads to a condition called as dehydration. Okay, now अभी dehydration वाली condition मैंने बताई कि वहीं water का level कम हो गया, salt का level कम हो गया, तो फिर इससे recover करने के लिए क्या करेंगे हम, इससे recover करने के लिए प्राइमरी हेल्थ सेंटर, PHC, प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, वहाँ पर ओरल रिहाइड्रेटिंग सॉल्यूशन ORS के पैकेट फ्री में अवेलेबल होते हैं. ORS का पैकेट लाया, पानी में मिक्स किया एंड यू कैन ड्रिंक इट. इट कैन मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर, बॉडी इट कैन मेंटेन द वाटर लेवल इन द बॉडी. ORS, व्हाट इज द लॉन्ग फॉर्म, दैट इज ओरल. O स्टैंड्स फॉर ओरल, R स्टैंड्स फॉर रिहाइड्रेटिंग. देखो हाइड्रेट हुई हमारी बॉडी है ना, डिहाइड्रेट हुई, तो डिहाइड्रेट का अपोजिट होता है रिहाइड्रेट. सो रिहाइड्रेटिंग, ओरल रिहाइड्रेटिंग सॉल्यूशन, ओरल रिहाइड्रेटिंग सॉल्यूशन इज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ ORS. ओरल रिहाइड्रेटिंग सॉल्यूशन लेने के बाद आपके बॉडी में वाटर का लेवल मेंटेन हो जाता है ना. हम इसीलिए घर में हमेशा हमारे पास ORS के पैकेट्स होने चाहिए. But what happen if I don't have the ORS packets? Then you can use sugar, water and salt to make a ORS, oral rehydrating solution. For this you must take this ratio 6:1. 6:1 means 6 spoons of 6 spoons of what? Sugar plus half spoon of salt plus 1 liter of water. 1 liter. Okay, when you take 6 टीस्पून यानी 6 चम्मच हमने क्या लिया, शुगर लिया, उसको मिक्स किया 1 लीटर ऑफ वाटर में, है ना, और साथ में हमने हाफ टी स्पून ऑफ क्या लिया, सॉल्ट लिया और उसको मिक्स किया. ये तीनों जब हम मिक्स करेंगे वाटर में, अगर शुगर और सॉल्ट मिक्स करेंगे तो वो जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा आपका, ORS, ओरल रिहाइड्रेटिंग सॉल्यूशन. आपने देखा होगा कई बार बच्चों को अगर इस तरीके से डिहाइड्रेशन हो जाता है तो ओरल रिहाइड्रेटिंग सॉल्यूशन बनाने के बाद उनको चम्मच से फिर एक साथ में एक स्पून पिलाया जाता है, तो फिर होता क्या है, इट कैन रिकवर, है ना, दे कैन रिकवर. सो दिस इज व्हाट द फॉर्मूला, 6 टीस्पून ऑफ sugar, half teaspoon of salt and 1 liter of water. This makes a 1 liter ORS solution. You can take this solution in a frequent time. Okay, थोड़े देर के बाद आप उसको ले सकते हैं and this will help you to recover from dehydration. Okay, so this is called as oral rehydrating solution. Okay, now dehydration. Okay,
So students, we have seen the various nutrient or the component present in the food. They are carbohydrate, fats, then protein, vitamins, minerals, then what roughage and dietary fibers and water. And we have seen the importance of water in our body, and we have also seen how to make the oral rehydrating solution at home. Students, this is the half portion of this chapter we have finished. In the next session we will see the balanced diet and deficiency disease. Deficiency disease means कि अगर हमने ये न्यूट्रिएंट प्रॉपर अमाउंट में नहीं लिए तो हमें कौन कौन से डिसीज हो सकते हैं. So in the next session we will see this, and after completing this complete chapter I'll give you the homework and you have to find out the answer of these questions which I'll give you. Okay, and if you have the question that I don't have the book, if you will say that I don't have the book, from where I'll write the answer and from where I'll read the chapter, so don't worry, I'll provide you the study material, and with this study material I also provide you questions. Okay, so don't worry, everything will be in the next session. For this session, bye bye.